I hope you are fine. Today, beta, we are starting our next class of PYQ for Unit 1. Then in last class also discussed beta some previous year questions of Unit 1 electric field. Then today also we will discuss there are some questions related to your Unit 1 only, that is related to electric field and potential. Okay. Now our first question. I hope you revised beta first one unit, then we will solve questions related to first unit only. You revised already, I think. Then here, define the term. Define define the term electric flux, then write its dimension. First we have to define electric flux. So electric flux is your group of the field lines. What is electric flux? This one is your group of the field lines. Okay. Group of the electric field lines. Group of electric field lines. Electric field lines is known as the electric flux. Okay. How many lines will be passed through any closed surface, then we will call it electric flux. Write its dimension. Dimension, how we can write it? First you should know about the formula of the flux. So according to this one, group of the field lines is known as electric flux. Then another way, according to definition, we can write flux phi equal to E dot ds. Yes or no? In vector form we can write it E dot ds in vector form. So as we are writing this one, then here electric field into your areal vector, this one your area. So how we can write this one term here? Electric field, we can write their force per unit charge also known as electric field, and this one your area. Area we can write there into your meter square. So we will write their unit of this one force unit. How we can write their force? Force we can write there in form of MLTs. डायमेंशन फॉर्मूला आपको डिफाइन करना है. डायमेंशन फॉर्मूला मीन इन MLTs की फॉर्म में आपको डिफाइन करना है. MLT, दिस वन A B C, these terms you have to find out of your electric flux. So कैसे हम चेंज कर सकते हैं मास की, लेंथ की, टाइम की फॉर्म में. सो कन्वर्ट दिस वन फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इन फॉर्म ऑफ द MLTs एंड चार्ज. जो चार्ज के लिए क्या है, हमारे पास कोई डायमेंशन कांस्टेंट नहीं होता MLTs. दैट्स व्हाई हियर फॉर द चार्ज वी कैन यूज देयर A stands for the our current एम्पियर. ए किस लिए बात करते हैं हम? एम्पियर के लिए. चार्ज को हम एम्पियर करंट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, आई इक्वल टू क्यू बाई टी. तो आई डायमेंशन हाउ वी कैन राइट देयर? आई इक्वल टू यर क्यू बाई टी. सो क्यू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी. तो इसके लिए जो डायमेंशन हम यूज करेंगे ए इंटू टी. ओके. सो फॉर फोर्स के लिए हम डायमेंशन यूज कर सकते हैं. फोर्स इक्वल टू यर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स एम एल लेंथ m1 l1 t minus 2. Here this is the dimension formula of the force only. Force here ma. Okay. F equal to ma. M is mass kg, m and a is meter per second square. So meter length and second square minus 2 into your length, meter square your length square, divide by your q. Q is charge here, this one I into t. I is your a and your t 4 time. I hope you understood beta. So convert this one, solve this one dimension formula, base same, then power we can add base m1 and length. Here length power is 1 and here length power is 2. So here we can write their length raised to power 3. Time here minus 2. This one minus 1. We will take it upper side. Then here we can write it minus 3. Minus 3. So here area we can write it here. Sorry, ampere current.
A stand for the current, ampere. M stand for the mass, L stand for the length, and T stand for the time, and A stand for the current. Okay, and this one, like this one, we can write the dimension formula of the electric flux. But electric flux क्या होता है? E dot ds. But for the electric field, we can't convert this one in form of the dimensional formula. So we have to convert this one in like this quantity, in which we can convert this one in form of the mLT form. Clear? So like this one we can write dimension formula of electric flux. Now next one part of this question only. A shape plane surface in a shape of the sphere. A plane shape of the sphere of side is 1 centimeter is placed in an electric field E equal to this one and acting along your I cap. किसके along act हो रहा है electric field? E along x axis such that unit vector normal to the surface this one surface given this one. Okay, surface is acting, surface dimension आपको given है acting 0.8 along I cap 0.6 k cap. Now find the electric flux through this surface. इस surface से कितना flux आएगा बेटा? This one PYQ of 2024 last year question ही है ये. Okay, so try to solve this question. Plane surface in the shape of sphere. किस shape की given आपको? Sphere के shape की given. So how we can say write this one? This one shape of the sphere 1 centimeter side. क्या given आपको? 1 centimeter side given है. After this one, electric field of this one like this. It says that unit vector normal to the surface. Clear? आपको electric field given है जो कि क्या है आपका I की तरफ एक्ट हो रहा है न्यूटन पर कूलम. Here I की तरफ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन plane surface kept in a presence of electric field and electric field is given here 100 Newton per coulomb I cap such that unit vector normal to the surface this one surface dimension आपको given है. Clear? So find the electric flux. अगर electric field given है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा बाय यूजिंग योर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड phi equal to E dot ds we can write. And next one we can use there phi equal to total enclosed charge in any surface by using Gauss theorem. Okay, total enclosed charge is times of the 1 by epsilon naught is known as your electric flux. So this one is our by using Gauss theorem and this one by using your electric flux definition. So which one formula we will use for find the flux? इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फ्लक्स फाइंड करने के लिए? अब चार्ज तो गिवन है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई वी कांट यूज गॉस थ्योरम. दैट्स व्हाई वी विल यूज देयर बाय यूजिंग हियर डायमेंशन. क्या गिवन आपको? डायमेंशन गिवन है, सी हियर डायमेंशन ऑफ सरफेस गिवन जहां पे नॉर्मल वेक्टर लाई कर रहा है. कहां पे नॉर्मल वेक्टर सरफेस पे लाई कर रहा है जिसकी पोजीशन क्या गिवन है? 0.8 I cap and 0.8 I cap plus 0.6 K cap. Clear? This is the unit vector, normal unit vector on the surface. So here phi equal to by using definition of electric flux, then we can write it by using definition of electric flux, then phi equal to we can write there E dot ds. Yes, okay, and here we can write there E ds here in vector form only given, so we will write in vector form only. So don't use this one here, vector form you are given here 100 I cap. Clear? Electric field किसके along given है? X के along given है I cap. Now ds is your area. Now side given of each 1 centimeter. So here we can write there a square into here this one normal unit vector 0.8 I cap plus here 0.6. Keep this one here area, not a square, area. Clear? And area of this one 100 I cap dot 0.8 I cap plus 0.6 K cap. Here dot product between them. And side of this one square piece given 1 centimeter beta, then we will convert into SI unit. Yes, centimeter given, then we will convert into meter. So how we can convert this one? 0.8
0.01 meter, and this one also convert 0.01 meter. Clear? So after converted, then write here area. Area we can write there 0.01 and here 0.01. Now solve this one. We can solve this one I cap I cap. So here how we can solve this one term? I dot I 1, I dot j 0, I dot k 0. So I dot I, then we can write it 0. Multiply this one 0.8 into your 100. Clear? Plus I dot k 0. Now this one here 0 na, I dot k, any factor left? No, this only. Now here 0 only. Okay, now here we can write it 0.01 into your 0.0. अब इसको सोल्व कर दो बेटा, सोल्व करेंगे then this point, then 100 divide by your 10 into your this one also we can write it 1 by 10 raised to power 4. Point remove करेंगे then divide by 4 we can write 1 0 to 1 0 cancel out, from here 1 0 cancel out, then here left 8 into 10 raised to power minus 3. फ्लक्स हम फाइंड कर रहे थे, फ्लक्स के लिए यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम इनटू ईयर मीटर स्क्वायर per coulomb. This is the unit of the flux. I hope you understood beta. If your dimensions are given in form of the vector, then we will solve vector quantity. If vector quantity are not given, then we will open this one EDS cos theta, then we will check there what is the angle between electric field and your surface area. Okay, but here vector form only given, that's why we will solve dot product between them, then we will find what is the flux passing through it. So this one your previous year question of your exam. Now next here two charge conducting sphere, each of radius a and b are connected to each other by a wire. अब ये कह रहा है कि then here two charge conducting sphere, दो charge conducting sphere, दो अपने कंडक्टर ले रखे हैं sphere, उनको चार्ज कर रखा है, both are connected by a wire. दोनों को क्या है, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, both are connected by a wire, दोनों सेम वायर से ले रखी है, कनेक्ट ए स्फीयर एंड ये लेट वी आर टेकिंग देयर बी स्फीयर, तो दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया. तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो फाइंड करो इनके सरफेस के ऊपर. अब हमें पता है कि रेशियो ऑफ द कांस्टेंट अगर सेम वायर से अटैच करेंगे तो दोनों के ऊपर सरफेस के ऊपर इक्वल अमाउंट में पोटेंशियल एक्वायर हो जाता है. क्लियर? बोथ objects we are connecting with the same conducting wire, then both will get some charge and this one charge will be acquired by them, then provide same potential between them. तो इस पे दोनों को एक वायर से अटैच करेंगे तो जितना पोटेंशियल इस पे एक्वायर होगा उतना ही पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बी स्फीयर पे आ जाएगा. बोथ स्फीयर आर हैविंग सेम पोटेंशियल. क्लियर? ये बोथ आर हैविंग सेम पोटेंशियल, देन देयर फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का इसकी रेशियो आपको रेडियस गिवन है ए की, ए रेडियस, और सेकंड वायर की जो रेडियस है वो क्या गिवन है, बी. क्लियर? तो दोनों पे क्या होगा, दोनों की सरफेस पे कांस्टेंट अमाउंट में क्या होता है, पोटेंशियल एक्वायर होता है. सो हियर बी ए कितना पोटेंशियल हो जाएगा, वी नो अबाउट दिस वन, पोटेंशियल इक्वल टू ऑन एनी सरफेस इक्वल टू के क्यू बाय योर आर. आर इज द रेडियस ऑफ दिस वन एंड क्यू इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस वन. सो पोटेंशियल बी इक्वल टू के Q by R, तो दोनों पे इक्वल पोटेंशियल होगा. सो हियर वी कैन राइट देयर V A इक्वल टू योर V B. V A वी कैन राइट देयर K चार्ज ऑन A डिवाइड बाय रेडियस ऑफ A. रेडियस ऑफ A गिवन है आपको A इक्वल टू K चार्ज ऑन B डिवाइड बाय रेडियस ऑफ B. रेडियस ऑफ B, B के ऊपर रेडियस क्या है, B गिवन है. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन राइट K टू K कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे चार्ज का रेशियो आ जाएगा कि दोनों पे कितना चार्ज में रेशियो डिवाइड है. दिस वन चार्ज ऑन A बोल्ट डिवाइड बाय चार्ज ऑन B बोल्ट. सो हियर वी कैन राइट देयर A बाय B. क्लियर? दिस वन केम रेशियो ऑफ द चार्जेस इन फॉर्म ऑफ द रेडियाई, क्योंकि हमारे पास रेडियाई गिवन है बेटा दोनों स्फीयर की, इसलिए हमने रेडियाई जो चीज टर्म गिवन आपको उसकी फॉर्म में क्या है, हमने रेशियो निकाल लिया चार्ज का. अब निकालने को क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कह रहा है कि दोनों सरफेसेस पे फील्ड कितनी होगी. सो हाउ वी कैन फाइंड दिस वन फील्ड, फील्ड ऑन दिस वन सरफेस, हाउ वी कैन राइट,
ratio of E, electric field on A, electric field on B. This one we have to find out. What is the ratio of electric field on the both sphere? Okay, so if this one electric field on A, EA, EB is the electric field on the B pole, then ratio between them we have to find out. Clear? So as we know, electric field, as we know, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? पोटेंशियल तो मैंने अभी बताया के क्यू बाई आर. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर. ओके, सो यूजिंग दिस वन देन हियर वी कैन राइट देयर नाउ ई ए डिवाइड बाई योर ई बी. So EA we can write it KQ by your R square A, then KQ by RB square. Clear? So KQ cancel out. Sorry, charge also different na. We can write this one here. Charge on A ball QA, charge on B ball here QB. Both are not having same charge. Okay, we are taking QA charge on A ball, QB the charge on B ball, and this one RA, radius of the first ball, given already in our question. QA divide by your A square given, and QB divide by your radius of the second ball. Radius of second ball given B. So K to K cancel out. Now from here came your this one ratio QA A square into your B square QB. Now previously beta here ratio of both charges came or not by using their term of the potential. Ratio of both charges is came your A by B. दोनों पोटेंशियल का, दोनों चार्जेस का रेशियो क्या आपके पास A और B रेशियो है. तो इसी क्रम को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे यूज करेंगे QA by B. दिस वन वी कैन राइट इट A by B. अभी हमने फाइंड किया ये वाला फैक्टर, इसी को हम यूज कर रहे हैं. A से A कैंसिल आउट, B टू B कैंसिल आउट. सो हियर लेफ्ट B by A. क्या बचा आपके पास? B by A बचा. सो हमारे पास क्या आ गया? EA इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड A to B, देन हियर वी कैन राइट देयर B by A. यही रेशियो आया ना. So this is the ratio of electric field in form of the radii. If A is the radius of the A ball and B is the radius of the second sphere, then ratio between electric field like this one we can find. This also PYQ of 2023 question. So I hope you understood beta this one second question also. Now see next question. Here two charged plane sheet of charge density sigma and -2 sigma Coulomb meter square are arranged vertically with separation d between them. Then deduce the expression for electric field to the left of the first seat, to the right of the second seat, and between these two seats. This one came in 2019. So two charged plane sheet whose charge density given sigma and -2 sigma. Clear? Arranged vertically with separation d. दोनों को अरेंज कर रखा है d separation के साथ. So how we can do this one? कि टू प्लेन सीट अरेंज्ड सेपरेटली विद डी डिस्टेंस. इस तरीके से क्या दो प्लेन सीट, इसकी चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी गिवन है -2 सिग्मा. क्लियर? ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है. टू प्लेन चार्ज सीट सिग्मा एंड -2 सिग्मा वर्टिकली विद सेपरेशन डी. डी सेपरेशन है बिटवीन देम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ निकालना? लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सीट, right of the first seat, and between them. So how we can find this one? Here you have to find out on this one point, on this one point. Left of the first seat, right of the second seat, and between these two seats. So how we can find beta here? This one. Let we are taking first seat. Positively charged है first seat, तो positively की वजह से electric field कहाँ लगता है? Outward. Now see negative, second seat is negatively charged. Negatively की वजह से कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ. Let this one point is P on the left. This one here A2. Separation आपको क्वेश्चन में given है D.
अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट कितना होता है, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो यूजिंग दिस वन, एज वी नो electric field due to plane charge sheet E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज की शीट के, तो इधर हमें निकालना. Now see here, electric field is not depend upon the distance from the charge sheet. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता कि कितना डिस्टेंस है. अगर इसको पास रखो, दूर रखो, डी सेपरेशन पे रखो या नहीं रखो, दैट इज नॉट डिपेंड. ई इज अ डिपेंड अपॉन सिग्मा, ओनली चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस. तो हमें चार्ज डेंसिटी निकालनी E1. E1 क्या है, इस चार्ज की वजह से. नाउ E1 electric field due to plane charge sheet 1. ओके, 1 की वजह से हमारे पास कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. क्लियर, हमारी चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड due to plane charge sheet 2. ओके, सेकंड की वजह से E2 वी कैन राइट दिस ऑन योर सेकंड सीट. तो इसकी वजह से हमारा क्या अंदर की तरफ लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, 2 सिग्मा. माइनस पे इंक्लूडेड, माइनस की वजह से क्या था, अंदर की तरफ लग रहा था, तो इट विल बी sigma epsilon naught. Clear? Minus 2 sigma 2 by 2. So here 2 to cancel out, then here left here sigma by epsilon. So here total electric field on point P. क्या पॉइंट है, P पॉइंट है. P पॉइंट पे लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन शीट 1, तो लेफ्ट साइड पे निकालेंगे हम, हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस प्लस हियर बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. अपोजिट की वजह से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 सिग्मा माइनस ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन टेक कॉमन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. हियर लेफ्ट हियर 1 by 2 minus 1. अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हियर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, देन हियर लेफ्ट हियर माइनस 1 by 2. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, सो E इक्वल टू आवर सॉलिड, देन हियर माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया P पॉइंट पे इधर की साइड. Here same, now we will find electric field on this one. अब इस सीट की वजह से किधर लगेगा, आउटवर्ड E1, तो इसकी नेगेटिव, इसकी वजह से कहाँ लगेगा, इनवर्ड. डिस्टेंस पे डजंट डिपेंड अपॉन दिस वन, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता. क्लियर, तो दोनों की वजह से इधर लग रहा है, इसकी वजह से इधर लग रहा है, देन वी विल टेक देयर इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस वन, योर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. सेम मेथड आपको अप्लाई करना है इधर की तरफ भी. क्लियर, तो इसकी सीट की वजह से इधर कितना लगेगा, कितना लगा इधर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. इसकी वजह से इधर कितना लगा, सिग्मा बाई 2 सिग्मा गिवन है 2 एप्सिलॉन नॉट. 2 2 कैंसिल आउट, सो हियर लेफ्ट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और E1 क्या बचा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी इधर भी, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये इस पॉइंट पे Q पॉइंट पे. अब निकालना अंदर की तरफ. नाउ सी, अंदर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज शीट है, पॉजिटिवली चार्ज शीट की तरफ किधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटा जिस भी कहीं भी एक पॉइंट एज्यूम कर लो, पॉइंट शुड बी बिटवीन देम. ओके, डजंट डिपेंड वो 1 के नियर है या सेकंड के नियर है, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है. अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो फील्ड ज्यादा, चार्ज डेंसिटी कम है तो फील्ड हमारा कम है. डजंट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस. सो हमारा इस पॉइंट पे अगर हम फील्ड निकाल रहे हैं दोनों चीज की वजह से, तो पॉजिटिव की वजह से कहाँ लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, दिस वन हियर E1,
नेगेटिव की वजह से कहाँ लगता है, इनवर्ट डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, तो इस पे भी फील्ड कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ. सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्ज शीट एक्टिंग इन वन डायरेक्शन, दोनों की वजह से कहाँ लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है. ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड दिस वन. नाउ हियर इलेक्ट्रिक फील्ड between charged plane sheet. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं बिटवीन चार्ज्ड प्लेन शीट. सो दिस वन योर चार्ज्ड प्लेन शीट आर देयर. क्लियर, प्लेन शीट ये थी, इन दोनों के बीच में हम निकाल रहे हैं. दोनों के बीच में कहाँ निकालेंगे, दोनों की तरफ कहाँ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है ये E1, ये E2. इस पे चार डेंसिटी सिग्मा है और इस पे क्या है -2 सिग्मा. तो दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि एक क्या है नेगेटिवली है, क्या पॉजिटिवली. सो E1 विल बी E1 इक्वल टू ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा चार डेंसिटी, इसकी वजह से कहाँ लगेगा, इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सेकंड E2 की वजह से कहाँ लगेगा, -2 सिग्मा. ओके, सो हियर सिग्मा माइनस की वजह से हमने डायरेक्शन चेक कर दी. सो हियर विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन. क्लियर, सो बोथ आर एक्टिंग, बोथ fields are acting in same direction. So total electric field E will be equal to E1 plus E2. This one here sigma by 2 epsilon naught plus here this one 2 sigma na, its value is 2 sigma by 2 epsilon naught. This to this cancel out. So how we can solve sigma by epsilon naught, and here 1 by 2 plus here 1. So here we can write it 3 by 2 sigma by epsilon naught. तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 by 2 sigma by epsilon naught. This one in the between these two parallel plate. Clear, पैरेलल प्लेट, फर्स्ट प्लेट से इधर की तरफ हमारे पास फील्ड लग रहा है माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी कितना ही लगेगा, बिटवीन देम 3 by 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. क्लियर, नाउ रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड बेटा दिस वन क्वेश्चन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिस्टम कंसिस्टिंग of two charges q and minus q separated by a distance in air, a distance. Now here draw an equipotential surfaces for a system consisting of a two charges q and minus q separated by a distance a in a air. किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर रखे हैं, तो आपको क्या करना है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी, इसके अंदर टू चार्ज की वजह से q और माइनस q. ठीक है, दो सरफेस हमारे, दो चार्ज, एक q है और एक माइनस q है, इन दोनों की वजह से क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है. एंड लोकेट द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज 0. और आपको वो पॉइंट देखना जहां पे क्या है, पोटेंशियल उस डाइपोल की वजह से 0. नाउ वी कैन कॉल इट डाइपोल और नॉट. q एंड माइनस q बोथ आर डाइपोल. यस, केप्ट सम डिस्टेंस. डाइपोल किसको बोलते हैं, जब दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज को अपोजिट पोल कीपिंग विद सम डिस्टेंस, देन वी कैन कॉल इट डाइपोल. तो यहाँ पे क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सेपरेटेड विद सम डिस्टेंस, देन वी कैन कॉल इट डाइपोल. तो पहले तो आपको क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको वो पॉइंट लोकेट करना है जहां पे क्या है, पोटेंशियल आपका 0 आ रहा हो ड्यू टू डाइपोल, इस डाइपोल की वजह से. दिस वन केम कॉन्टिन्यूसली मैनी टाइम्स बेटा इन दिस एग्जाम. And next one part, draw the equipotential surfaces due to the isolated point charge. Isolated point charge की वजह से क्या आपको equipotential surface draw करनी. How? So first part, how we can do this one? Solution, equipotential surface. अब हमारे पास दो चार्ज है, due to point charge q and second minus q. Both are keeping with some distance. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, both them there will be force between them. What is the force between them? Positive and negative. Force between them will be attractive force. Okay, so attractive force, then field will be more between them as compared to the outside. Yes or no?
So from this one field lines will be go outward and this one will be इनवर्ट फील्ड लाइन. अब हमें पता है कि पोटेंशियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा फील्ड लाइंस पे क्या रहती है, परपेंडिकुलर. फील्ड लाइंस के साथ क्या है कि पोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होती है. तो एक ये पॉइंट चार्ज, एक ये पॉइंट चार्ज, तो इनकी वजह से जो हमारी पोटेंशियल बनेगी वो कैसी बनेगी, स्फेरिकल से, ऐसे राउंड शेप में बनेगी. क्लियर. बट हम राउंड शेप पे कंप्लीट इक्वी डिस्टेंस वी कांट कीप. अगर ये क्यू चार्ज है then we can write their equipotential surfaces like this one, but this one another charge kept near with it, कोई दूसरा चार्ज इसके पास रखा गया, then we will not keep same distance between them. यस ना, बिकॉज दोनों के बीच में क्या है, फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव. मीन्स अंदर की तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है और बाहर की तरफ फोर्स क्या है, कम लगेगा. क्लियर. अगर फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम होगा, फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो क्या होगा, का गैप ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा. तो हमें यही इंडिकेट करना बिटवीन देम. हाउ वी कैन ड्रॉ दिस वन, फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लाइक दिस वन. अंदर की साइड तो गैप कम और बाहर की साइड गैप ज्यादा, क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स कैसा लग रहा है, आपका ज्यादा लग रहा है. क्लियर. इसी तरीके से इस तरीके पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल सरफेस हमारी कैसे बनेगी, स्फेरिकल से, इस तरीके से. देखो सी हियर, गैप क्या है इनके अंदर, अंदर की तरफ कम है और बाहर की तरफ क्या करना, गैप ज्यादा लेना. क्लियर. अगर आपका सिर्फ पॉइंट चार्ज पूछता देन एवरीवेयर सेम डिस्टेंस विल बी देयर बिटवीन ईच इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बट हियर having two charge with some distance, that's why their gap between field lines will be less. If there will be same pole, अगर दोनों चार्ज का सेम पोल होता तो दोनों क्या करते, रिपेल करते, फोर्स बाहर की तरफ ज्यादा लगता, अंदर की तरफ कम लगता. तो अंदर की तरफ जो पोटेंशियल सरफेसेस होते हैं उनके बीच में गैप क्या होता, ज्यादा होता एज कंपेयर टू दी आउटसाइड. क्लियर. सो आई होप यू अंडरस्टूड बेटा. नाउ दिस वन योर डाइपोल. अभी क्या है, ये डाइपोल है. क्लियर. अब ये कह रहे हैं ड्रॉ इक्विपोटेंशियल. अब हमने ड्रॉ कर दी इक्विपोटेंशियल सरफेस. ड्रॉ करने के बाद ये पूछ रहा है नाउ देयर ड्रॉ दी पॉइंट, वो पॉइंट लोकेट करो जहां पे पोटेंशियल क्या आपका डाइपोल के ऊपर जीरो. अब हमें पता है पोटेंशियल हमने दो जगह फाइंड किए थे, एक एक्सियल पे और एक इक्विटोरियल पे. ऑन द डाइपोल वी आर टेकिंग देन ऑन द इक्विटोरियल एवरीवेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू जीरो और नॉट. यस ना, कि अगर डाइपोल ले रहे हैं उसके इक्विपोटेंशियल पॉइंट पे हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है. इक्विपोटेंशियल पॉइंट मींस दैट इज अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल परपेंडिकुलर टू इट. वो लाइन जो दोनों डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलरली पास होती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल लाइन बोलते हैं. तो इस लाइन पे कहीं भी अगर आप पोटेंशियल फाइंड करोगे तो हर जगह पे पोटेंशियल क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा. क्लियर. क्योंकि ये क्या है, एक डाइपोल बना Q माइनस Q, इट इज योर डाइपोल विद सम डिस्टेंस. तो डाइपोल की इक्विटोरियल जो लाइन बनेगी उस पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है. तो यहाँ पे कहीं भी पॉइंट डिनोट करेंगे देन दिस ऑन दिस पॉइंट एवरीवेयर पोटेंशियल विल बी इक्वल टू जीरो ओनली. नाउ सी नेक्स्ट, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू द आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज. अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से. आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से, आइसोलेटेड मींस सिंगल पॉइंट चार्ज. अगर हमने Q पॉइंट चार्ज रखा है तो हमारी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाती है, आउटवर्ड. इस तरीके से फील्ड लाइंस विल बी आउटवर्ड लाइक दिस. क्लियर. इसके ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ड्रॉ करोगे, सो हाउ वी कैन ड्रॉ ऑन दिस वन, देयर विल बी परपेंडिकुलर. इस तरीके से ड्रॉ करनी बेटा, जो इनके ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकल से. क्लियर. अगर फील्ड लाइंस पैरेलल निकलती है तो सरफेस हमारी कैसी बनती है, प्लेन सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, प्लेन सरफेस. बट हियर फील्ड लाइंस इज गोइंग आउट लाइक दिस वन, so surface will be a spherical like this only. If there will be negatively charged, अगर negatively charged अगर हम रखते हैं तो हमारी फील्ड लाइंस कैसे आती है, अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ ऑन द सरफेस, इनवर्ड. Clear. But here on this one, here equipotential, how we can draw, equipotential will be perpendicular on this one. Each are having सेम गैप बिटवीन देम. सभी के अंदर क्या, सेम गैप होना चाहिए. यहाँ जो पोटेंशियल है सेम पोटेंशियल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ.
क्लियर, क्योंकि सेम पोटेंशियल, क्योंकि ये इसके किसी और चार्ज के साथ डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करा, सिर्फ एक सिंगल चार्ज है। सिंगल चार्ज है तो हर जगह पे गैप क्या रहेगा, पोटेंशियल के बीच में सेम रहेगा। यहाँ पे दो चार्ज से कॉन्टैक्ट विद ईच अदर विद सम डिस्टेंस, दैट्स व्हाई वी ड्रॉन देयर इक्विपोटेंशियल surfaces like this one. So I hope you understood beta how you can draw their equipotential surfaces. Now see next question. Now next question beta, obtained the expression of the equipotential surface, equipotential energy of the system of three charges q, 2q minus 3q placed at the vertices of equilateral triangle of side A. Clear? This one of your last year question, last year 2023 only. So यहाँ तक बेटा, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका। obtained the expression, ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन निकालो आपके फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस। क्लियर, कि आपका सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, थ्री चार्जेस डाल रखे हैं। थ्री चार्जेस क्या क्या आपकी q, 2q एंड माइनस q प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, q, 2q एंड माइनस 3q। ओके, 2q and minus 3q kept three charges on the equilateral triangle. Equilateral triangle we can draw, each are drawing 60 degree angle, हर एक के बीच में क्या है, 60 degree angle है। Clear? So here point A, B, C and each are having side here, side of this one given here A। इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड क्या गिवन है, ए साइड गिवन है, तो इसके ऊपर थ्री चार्ज रखे Q, 2Q एंड 3Q। तो आपको क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर द इक्विपोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, अगर दो चार्ज गिवन है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी। क्लियर, इफ टू चार्जेस आर देयर, देन इफ टू चार्जेस are there, then electric potential energy U will be equal to K Q1 Q2 by your R. This is the formula of your potential energy, electric potential energy. Using this formula then you have to find out। तो आपको अरेंजमेंट कैसा गिवन, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसके वर्टिसेस में आपको क्या गिवन, यहाँ पे Q, 2Q माइनस 3Q, ये आपको गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज आवर स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सो नो नीड टू इंडिकेट द डायरेक्शन, सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो हाउ मेनी रिलेशंस वे कॉम्बिनेशन विल बी देयर, कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, NC2 यू कैन अप्लाई देयर। N इज अ नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल इन दिस अरेंजमेंट। तो कितने चार्ज अवेलेबल है, 3 चार्ज अवेलेबल है। ओके, सो वी कैन राइट इट 3C2। नाउ सोल्व इट, देन हियर 3 फैक्टोरियल, 3 minus 2 1 फैक्टोरियल, देन हियर 2 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो मीन्स यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनेंगे चार्जेस के बीच में एनर्जी के, वो 3 अरेंजमेंट बनेंगे। 3 मतलब कैसे, बिटवीन देम एनर्जी, एनर्जी बिटवीन देम एंड एनर्जी बिटवीन देम। क्लियर, तो हमारे पास एनर्जी आएगी नाउ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, K Q1, दिस वन चार्ज इज Q, Q2, हेयर चार्ज इज 2Q, Q and 2Q। क्लियर, डिवाइड बाई R, R इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस क्या गिवन हमारे पास A, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K 2K Q स्क्वायर बाई R। Yes or no? So next one 2K Q square by A. Next one here BC. Next arrangement we can use this combination BC. In BC, along BC we can write there K 2Q and into here minus 3Q divide by your K, divide by A. So here we can write, ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी में अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव विल इंक्लूड इन द फॉर्मूला,
अगर वेक्टर क्वांटिटी में अगर नेगेटिव होता देन वी आर यूजिंग फॉर अ डायरेक्शन, क्लियर, बट अगर यहाँ नेगेटिव देन वी विल यूज इट एज इट इज. नाउ हियर 3 to the 6k q square by your k. नेक्स्ट वन, एनर्जी बिटवीन योर ए एंड सी. ए एंड सी के बीच में एनर्जी फाइंड करनी है. सो ए टू सी वी कैन राइट देयर के क्यू एंड -3q, q and -3q divide by distance between them. Here we can write it -k 3k q square by a. यही आ जाएगा हमारे पास. तो हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी बिटवीन देम ए बी सी. सो टोटल एनर्जी हम फाइंड कर देंगे. टोटल एनर्जी क्या आएगी, नाउ पुट वैल्यू ऑफ दिस वन. नाउ टोटल एनर्जी open equilateral triangle. So you can write there u equal to u a plus b, u b plus c and energy of a. तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी. हियर नो नीड टू सी द डायरेक्शन, यहाँ में डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्या हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे. सो वन एनर्जी दिस वन, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन. नाउ एडिंग दिस वन, हियर 2kq, हियर u 2kq square by your a plus next your energy is -6k square by a, -6k square by your. Now next one UAC along AC -3k cube square by a, -3k cube square by a. यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो कॉमन निकला, दिस वन फैक्टर विल बी टेक आउट कॉमन. सो k क्यू स्क्वायर बाई a. तो अंदर क्या बचेगा, 2 -6 -3, 2 -6 -3. clear? So here kq by a. Now solve it, then here we can write 2 -3 9, then 9 minus 2 minus 9, here will be -7. okay, so here we can write it u equal to our -7k square by your. तो हमारे पास क्या है, ये एनर्जी आ जाएगी. दिस वन एनर्जी ड्यू टू द इक्वेटोरियल एनर्जी. तो आपको ध्यान रखना बेटा, एनर्जी हमारी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी है. सो नो नीड टू इंडिकेट हियर डायरेक्शन, डायरेक्टली वी कैन यूज दिस वन योर फॉर्म, योर फाइंड देयर एनर्जी फॉर्मूला k q1 q2 by your r only and then total between this one. अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो चार्ज को. हियर वी आर नॉट यूजिंग देयर नेगेटिव पॉइंट फॉर दी डायरेक्शन. तो टोटल एनर्जी निकालेंगे. अरेंजमेंट अगर आपको चेक करना कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, सो वी कैन अप्लाई देयर NC2. दिस वन डायरेक्ट फॉर्मूला शॉर्टकट टू चेक देयर हाउ मेनी रिलेशन विल बी देयर बिटवीन देम बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन ऑफ दिस क्वांटिटी. सो आई होप यू अंडरस्टूड बेटा. नेक्स्ट वन क्वेश्चन मोर, देन ट्राई इट एट योर होम. दिस वन, space between the plates of the parallel plate capacitor completely filled in a two way. कि स्पेस है आपका कैपेसिटर के अंदर, ये कैपेसिटर आपको गिवन है, इसके अंदर आपको दो तरीके से आपको कैपेसिटर गिवन है. स्पेस फिल्ड बिटवीन देम लाइक दिस वन. हियर डिस्टेंस बिटवीन देम is this one d given and here distance between them divided into two part, d by 2 t by 2. क्लियर? इस तरीके से क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल्ड है. हियर k1 एंड हियर हियर k1 k2, k1 k2. then in this case slab of the dielectric constant k and in this one two slab thickness and directly dielectric constant k1 and k2 given as shown in figure. इस फिगर के अंदर गिवन है, एक ये केस गिवन है, ये केस गिवन है. इसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड है जिस डाइलेक्ट्रिक से, उसका कांस्टेंट क्या है k. इसके अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया हाफ हाफ पोर्शन में, डिस्टेंस डिवाइड कर दिया इसके अंदर d by 2 t by 2. इस वाले पोर्शन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है, इस वाले का क्या है k2.
तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस सेम इनटू रेशियो, दोनों के अंदर जो कैपेसिटेंस वो सेम है। लेट इसके अंदर C1 कैपेसिटेंस आ रहा है, इसके अंदर C2 कैपेसिटेंस आ रहा है। क्वेश्चन में गिवन है दोनों कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है। सो यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन K, K1, K2, K3, K, K1, K2, K3, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो हमें क्या निकालना है, पहले कैपेसिटेंस निकालना है इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपेसिटेंस हमें पता है क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई ईयर डी ड्यू टू ईयर वैक्यूम। ओके, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम ऐड कर देते देन वी कैन यूज दिस वन फॉर्मूला। यही फॉर्मूला इसके अंदर ऐड करना है, डिवाइडिंग डिस्टेंस एंड बोथ इन सीरीज कॉम्बिनेशन। use this one formula better than check there, apply this one condition, C2 and C1 both are equal. Using this one condition then write their relation between them. So try to solve your this one question and comment your answer of the question number 6. Thank you for watching today our video.